રેખાબેન રાવનો ભંડો. ભારત માતા કી. ગુજરાત એ તો લોકસેવાને વરેલું છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક અનેક સંસ્થાઓ અને સ્વૈચ્છિક સંગઠનો જોઈ શકાય છે કે માનવ સેવા દ્વારા છેવાડાના માનવી સુધી સેવા પહોંચાડે છે અને લોકોને મદદરૂપ થાય છે. આવી જ એક સંસ્થા છે દીનબંધુ માનવ સેવા સમાજ કે જેઓ અમરાઈવાડી જેવો પછાત વર્ગ કહેવાય કે જ્યાં શ્રમજીવી વિસ્તાર અને જ્યાં મિની ભારત કહી શકાય તેવા તમામ સંપ્રદાયના લોકો વસવાટ કરે છે. બીડું ઝડપ્યું છે ગુપ્તાજી પરિવારે કે જેઓએ મનોજભાઈ સાથે સેવાના આજીવન ભેગદારી એવા વ્યક્તિઓને સાથે લીધા અને આજે શરૂઆત એક સારી થઈ અને સ્વાભાવિક છે કે વર્ષોથી અહીંની સંસ્થામાં કામ કરતા વિદ્યાર્થી હોય કે વિદ્યાર્થીની હોય તેઓને કંઈક ને કંઈક અંશે એ તેજસ્વી તારલાઓને સન્માનિત કરવા સાથે તેઓ પગભર થાય તે માટે આર્થિક સક્ષમ બને તે માટે સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી અથવા સરકારની સંસ્થાની મદદથી કંઈક ને કંઈક મદદરૂપ થવાની ભાવના સાથે આજે એક કાર્યક્રમ યોજાયો જેમાં અમરાઈવાડી સહિતના આસપાસના અનેક વિસ્તારના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને વિશેષ રૂપે મુખ્ય મહેમાન તરીકે બાપુનગરના ધારાસભ્ય દિનેશજી કુશવાહા પણ રહ્યા. આપણી સાથે ગુરુજી છે તેઓને પૂછીશું क्या कहोगे. वैसे तो गुजरात की परंपरा रही है एक दूसरे को मदद की भावना से आगे आते हैं लोग. आज दीनबंधु मानव सेवा समाज ने वही कार्य किया है कि जो कार्य सदियों से चला आ रहा है. ऐसा है अष्टादश पुराणेषु प्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम. संपूर्ण सृष्टि में भगवान का प्रकट क्यों होता है, किस लिए होता है? हम समस्त मानव जाति की सुरक्षा और रक्षा के लिए. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्थात जो सेवा का काम करता है भगवान का सबसे बड़ा प्रिय वही होता है. सेवा के कार्य में व्यक्ति जितना अधिक आगे बढ़ता है भगवान उसके उतना करीब आते हैं. एग्जाम्पल तरीके महात्मा गांधी जो करमचंद मोहनदास थे वो महात्मा क्यों बने, किस लिए बने? केवल सेवा कार्य से. उनके साथ में जो जुड़ते थे वो समाज की सेवा के लिए ही जुड़ते थे और समाज की सेवा करते करते वो आज मानव से महामानव और भगवान के रूप में संपूर्ण विश्व के बापू कहलाने लगे. इसलिए जो सेवा का काम करता है वही सबसे बड़ा संसार में समाज में वंदनीय है. ये जो हमारा दीनबंधु मानव सेवा समाज ट्रस्ट चल रहा है इसके जो मुख्य अग्रणी हमारे माननीय सम्माननीय पूर्व काउंसिलर कॉरपोरेटर श्री मनोज भाई और श्री जेबी गुप्ता डॉक्टर जोखुराम गुप्ता जो हमारे परम प्रिय भी हैं और हम सब लोग जिस प्रकार छोटे में बच्चे लोग एक साथ खेलते कूदते हैं ऐसे हम लोग इस कार्य में जुड़े और बहुत दिनों से करीब 20-25 साल हो गए इस कार्य को चलते हुए. और इस यहाँ के हमारा जो गरीब बस्ती है इस गरीब बस्ती में इन लोगों ने उन गरीबों को ला करके और आज सबको अपने पैर पर खड़ा कर दिया. वो चाहे बेटियाँ हों, चाहे बेटे हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, वो निहायत गरीब घर के रहे उनको भी बुला करके इन्होंने किसी सीवण क्लास सिखाया, किसी कंप्यूटर के द्वारा उनको रोजी रोटी व्यवस्था करवाया. किसी से इन्होंने कोई विशेष फी नहीं रखा. केवल सेवा धर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है. यह मान करके
इन लोगों ने जो कार्य किया है ये भगीरथ कार्य किया है। ભગીરથ કાર્ય किया है। અન્ય ઘરની ગૃહિણીઓને અને યુવતીઓને એક પગભર થવા માટે દીનબંધુ માનવ સેવા સમાજ વતી એક ભેટ આપવામાં આવી રહી છે, જેથી કરી તેઓ આર્થિક રીતે સક્ષમ થાય। લોકોને પગભર થવા માટે જે આ કામ કરી રહ્યા છે દીનબંધુ સેવા ટ્રસ્ટવાળા, એ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે સમાજમાં જે ગરીબ વર્ગ છે એને રોજીરોટી મળે, એ સિલાઈ મશીનથી એ એનું જીવન નિર્વાહ કરી શકશે અને જીવન નિર્વાહ કરવાથી એના ઘરના પરિવારના બીજા લોકોને બી ખૂબ આગળ કોઈ બી કામ હોય આર્થિક રૂપે સમૃદ્ધ થઈ શકશે। એવું સરસ કામ કરવા બદલ હું આ દીનબંધુ સેવા ટ્રસ્ટને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું અને જે લોકોને આ સિલાઈ મશીનને જે બી વસ્તુઓ મળી છે એ વસ્તુ લઈ જઈને અને એ પગભર થશે અને ખૂબ આગળ વધે એવી એમને શુભકામના આપું છું। મનોજભાઈ, સામાન્ય માણસ, છેવાડાના માણસ, શ્રમજીવી વર્ગની એ યુવતીઓ અને યુવકોને આપણે આ સંસ્થા લગભગ એક દાયકાથી મદદરૂપ થતી આવી છે, શું કહેશો? આ એનજીઓ, આ સંસ્થા પરમાદરણીય પરમ શ્રદ્ધેય આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રીએ જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની બાબતને જે એમણે અગ્રિમતા આપી છે, એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના ભાગરૂપે આ સંસ્થા દ્વારા બહેનોના સર્વાંગી વિકાસ માટે અહીંયા ગરીબ શ્રમજીવી અને અંત્યોદય સમાજની બહેનો પોતે પગભેર થઈને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે એના માટે અમે સીવણ વર્ગ એટલે કે સીવણ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચલાવીએ છીએ। બીજું કે હાલના હાઈટેક યુગમાં અત્યારે જે બાળકો જેનું કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન મળે એના માટે અમે કોમ્પ્યુટર ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચલાવીએ છીએ। આ ઉપરાંત અનેકવિધ સેવા પ્રકલ્પો અમે ચલાવીએ છીએ। આ સંસ્થાનો મૂળભૂત હેતુ સામાજિક સમરસતા અને અંત્યોદય સમાજ કઈ રીતે પગભેર થાય અને કઈ રીતે અમે આ સંસ્થા દ્વારા સર્વાંગી વિકાસ બાબતે કઈ રીતે અમે ઉપયોગી થઈએ એ બાબતનો અમારો ભગીરથ પ્રયાસ છે। ચોક્કસ બીજા કેટલાક લોકો છે આપણી સાથે। क्या कहोगे, वैसे तो मानव द्वारा मानव की सेवा ही इस संसार में उत्तम कार्य है। दीनबंधु मानव सेवा समाज ट्रस्ट बहुत ही भागीरथ कार्य करता है सभी गरीब लोगों के लिए। कैसी महसूस कर रहे हो कि आज इन्होंने अनेक लोगों को एक पगभर होने के लिए रोजगार का साधन? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ दीनबंधु सेवा के कार्य से। बहुत ही अच्छा भगीरथ कार्य लोग कर रहे हैं। आप बताइए, गुजरात की परंपरा रही है, देश की परंपरा रही है, एक दूसरे को कुछ न कुछ मदद करना। ये संस्था जो एक दशके से ज़्यादा समय से जो मदद की भावना से बच्चे को, विद्यार्थियों को, युवक को जो सहाय दे रही है, आज उसका एक परिणाम मिला सबको देखने का कि इस तरह का भी कार्यक्रम गुजरात में हुआ करता है। दीनबंधु सेवा समाज से मैं लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसकी विविध गतिविधियाँ देख रहा हूँ और इसमें ये समाज सेवा में जो है अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी ये लोग जो है टारगेट कर करके सेवा करते हैं, जो ही बहुत अच्छी चीज़ है। और कोरोना में इन्होंने हमारे साथ में रह करके बहुत बढ़िया प्रयास किया भोजन पहुंचाने का, बाकी सब चीज़ों में। और समय समय पर यहाँ मेडिकल कैंप वगैरह भी होता रहता है, आँखों के कैंप होते हैं, जो कि बहुत अच्छा सेवा कार्य है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ इस संस्था से जुड़ा होने के लिए। अमरेवाड़ी एक ऐसा विस्तार है कि जहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं। आप बताइए युवाओं के नाते किस तरह की ये संस्था का कार्य आप देखते हैं? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। महाभारत में द्रोणाचार्य ने कहा था कि ज्ञान पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं होता है, लेकिन समय के अनुसार वो परिभाषा बदली और इस हद तक बदल गई कि आज हम ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ सकता है। लेकिन मैं इतने समय से देख रहा हूँ कि दीनबंधु ट्रस्ट जो है वो गरीबों के लिए भले राहत दरे चौपड़ा वितरण ना कार्यो होय कि गमे ते होय, सीवण क्लासेस ना होय, कॉम्प्यूटर एज्युकेशन रिलेटेड कोई भी कार्य होय, इवन અમારા સર્કલમાં બી ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે જેમને અમે લોકો અહીંયા મોકલીએ છીએ અને એ લોકો સસ્તા દરમાં કામ કરી આપે છે એમને, એજ્યુકેશનથી માંડીને બધી સુખ સુવિધાઓ આપે છે। તો હું ખરેખર નતમસ્તક છું આના માટે અને એ કાબિલે તારીફ કામ છે। ચોક્કસ નતમસ્તક છે। શું કહેશો વળી ગુપ્તા પરિવાર અને मनोजભાઈનો परिवार दीनबंधु सेवा समाज द्वारा इस तरह का एक कार्य जो आज आपने देखा? नहीं, इनके साथ मैं लगभग एक साल से जुड़ा हुआ हूँ और इनका कार्य इतना अच्छा है कि गरीब से गरीब हो वो भी व्यक्ति यहाँ करके बढ़िया से पढ़ लिख लेता है। हर चीज़ का सुविधा और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को जो ज़रूरत पड़ रही है, जैसे सिलाई मशीन है, टैबलेट है, ये सब चीज़ भी समय समय प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी बच्चे के पास फीस भी भरने को नहीं है तो
ऐसी बात नहीं है कि यहाँ उसकी पढ़ाई नहीं होती, उसको यहाँ एडमिशन दिया जाता है और जब भी उसके पास अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में देता है। अगर वो भी नहीं होता है तो कहते हैं बेटा तुम पढ़ो, पढ़ करके खाली आगे बढ़ो। उसी में हमारी अनुभूति है, उसी में हमें सुख है और मुझे भी काफ़ी गर्व महसूस होता है इस गुप्ता परिवार को, इस जो है दीनबंधु मानव सेवा समाज ट्रस्ट को इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कार्य अगर कम से कम नहीं ज़्यादा अगर 10-20 संस्था ही पैदा हो जाए हमारे देश में तो शायद हमारे गुजरात स्टेट नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरा देश हमारा एकदम उत्थान पे जाएगा और कोई भी गरीब बच्चा अनपढ़ नहीं रह जाएगा और बेरोज़गार नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ रोज़गार की भी व्यवस्था की जाती है। कहीं से भी अगर वो सीख गया है तो जहाँ भी कहीं रोज़गार दिखता है तो वहाँ पर यहाँ से खुद हमारे धर्मपाल भाई गुप्ता उनको जो है सहयोग देते हैं और लोगों से परिचय करा के उनसे बात करके कि भाई ये लड़का योग्य हो चुका है और इसे आप सर्विस दीजिए, ये सर्विस के योग्य है और हर प्रकार की सुविधा देते हैं। इसके लिए मैं गुप्ता परिवार का और दीनबंधु सेवा समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भारत जय हिंद। આ હતા કેટલાક લોકો કે જે જણાવી રહ્યા છે કે દીનબંધુ માનવ સેવા સમાજના આપણે કાર્યો કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને હોનહાર તેમજ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને કંઈક ને કંઈક અંશે મદદરૂપ થાય તેવી ભાવના સાથે તેઓને આપણે રોજગારીના સાધનો પણ આપવામાં આવે છે અને શિક્ષણના સાધનો પણ આપવામાં આવે છે। પંચાયત ટીવી હર્ષદ પટેલ, દીપક ભાઈ પંચાલ સાથે।